Recording. All right. Good evening, guys. Thank you so much for joining in. I'm extremely sorry for the delay. And to start with, I just want to tell you, that, you know, every runner, this journey starts with a, spark. I hope you agree with me. And sometimes it's like casual 5K, or sometimes it's just you're accompanying your friend. Somewhere it starts, your journey. And but somewhere on the road, sometimes something clicks, and and simply the routine becomes a powerful passion sometime. So as we grow as a runner, the people we meet, the basics we learn, the races we choose, and our consistency, discipline, and the vision what we have when we start our running journey, that matters a lot. And all of those shapes the athletes we eventually become. That's most important, guys. And so today we have with us someone who embodies all of that, a rare of mix of willpower, smart decisions, and relentless grit, a runner who has climbed milestones at a pace that even seasoned athletes admire, Aarti Agarwal. And Aarti is working as assistant vice president at JP Morgan. Began her running journey in December 27 with a simple 5K. What started as a casual has taken her across some of the toughest marathons and ultra marathon courses in India and around the world. And hope you all know, I mean, you don't need any interaction to her, but still, just to, as a formality, is just giving some of them maybe, new to this and running and stuff like that. So that's the reason, a small introduction, like whom you're talking to. So her achievements, there's plenty. I think is going to take another lot of time, but still, I'll take fast, quick one. Like I'll just tell you the key highlights of the Aarti journey: 20 plus ultra marathons, and her marathons are less, actually only 12 marathons. And she's finished a 24 hours stadium run in 2025, first runner up, 182 kilometers, 182.8 kilometers. And recently, she represented India in 24 hours World Championship France 2025, and Border Ultra 2024 first runner up, sub 22 hours, and Border Ultra 2023 second runner up, back to back. And Comrades Marathon first attempt itself, she's finished in sub 11 hours finish. And Tata Ultra Marathon 75K winner she is. Also Kadungla Challenge 2024 finisher, and a marathon PB is 3 hours 46 minutes. That's in Adani in 2024 recently. And she's a pacer at Tata Mumbai Marathon consecutive 3 years. 3 years, 2022, 23, and 2024. And fastest female in 2020, I'm talking about. And in our previous company, Bloomberg Square Mile in relay 2020, she was the fastest female. And also in that same year, she did a Bombay Goa Chase relay. Also, she's completed that. So this is about Aarti Agarwal. And so now, like, I just wanted to ask you a few queries to start with Aarti. That that how do you started? I mean, I know that this your started journey started. Who's this? Somebody, like, I got to mute them. Sir, kindly mute yourself, please. Dr. Puri. Hello. Sir, Dinesan, sir, Dinesan. Yeah, I think he's muted now. Yeah. Okay. All right. Okay. So, what I was just saying, I wanted to ask you, see, you work as you working in the U.S. I think it's in a U.S. bank, right? And it's a very odd office hours you have, and you reach home almost in the midnight or small, almost like that, and still you have wake up in the morning and you go for your run, training for half and full marathon. It is fine, if you're coming late or something, but still it is not the same. And if you're like training for an ultra marathon, you require a lot of mileage. And that too, like, you are in on that elite runner, sort of like, you come in the podiums. So you require really more time to spend on your feet and, mileage and stuff like that. How this is possible,
sometimes I really wonder, like, what kind of a determination, grit and determination you have. What are the major challenges you face in your training, and how do you overcome these challenges? So, if you can tell our viewers, kindly mute yourself, please. Thank you. Sachin, please mute yourself. I'll mute you, but anybody else, kindly mute. Yeah, Arti, please. So I just wanted to know, well, how do you manage all this? And uh, yeah, it's late hours coming, and hardly. And I've seen in your comrades also, you require a lot of hill training in comrades as well. There, you hardly did any hill trainings. Where it is coming from, all this? How it is possible? If you can just, in brief, if you can tell me, please. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. First of all, आपने इतना देर वेट किया उसके लिए thank you so much. I really appreciate your patience and time. And thank you so much, sir, for inviting me here. Very quickly, because we're running late, so I'll try to keep it short. Yeah, I mean, I work EMEA hours, which is UK hours, because I support US. So I come home by 12. By the time I go to bed, it's 1 o'clock at night. And that's the reason I can't start early morning. Like, can't get up at 5 and then go for a run in the morning. But then this is one thing I've learned in my life. Like, every challenge is an opportunity, right? So if you keep thinking about the challenges or the areas where you don't have what you don't have, then you will always miss out on what you have. So I know that I have limited time and I can't be training on the usual hours. So I took it as a like a opportunity in whatever I have, that I go out late in the morning, like 7:38 is when I start. Sometimes even as late as 8:30, because I have to take care of my house and a lot of the other things. So I start my run late. I have my office starts at 1:30, so I leave home at 12 o'clock in the afternoon and come back at night, 12 o'clock. So I have morning time, late morning time. So I start my runs on like 8:30, 9 o'clock, even if it is hot, humid, Mumbai, you know how it is. But But you it's have okay. enough But sleep. yeah, so that's a key, right? Like, it does not mean that you have to do a lot of mileage. Of course, mileage is key for building your base, but it is also important that when you're doing mileage, you're getting enough sleep, you're getting enough, eating right, you are balancing out everything, because I think having a balance in life is more important than like excelling in one area and falling short in other areas. So like, and it's not just for females, I think even for guys, they have to take care of their job, they have to take care and for their family. So what you have to do is you have to ensure that you're disciplined enough in your life, that not overdo anything. So what I do is I try to take out like 1.5 hour on my daily basis, like on the weekdays, for my run or for my workout or anything. So how I do is like 4 days a week I try to run. Sometimes when I'm closer to the event, I increase my mileage. So I also try to do like 5 days a week. And 2 days I do strength training. So when I'm doing strength training, then I mostly do it from home. Those days I try to plan it a way that those days when I have to do laundry or like ghar ka cleaning vagera. So because strength training will not need me like 1.5 hours. So I save, like, I do half an hour strength training, another 10-15 minutes for stretching and all that. So I save a little time. So that time I utilize for cleaning my house, bringing the groceries or laundry or whatever. I can't do all of that on weekends because we have long runs. So my maximum mileage that I cover it is on weekends. And again on weekends I don't start very early, for obviously for two reasons. One, on Fridays also I'm coming late. I'm coming home like 12ish. So I can't again get up at 3 o'clock to start my run at 4. So I try to get up at 4 o'clock, start my run like 6:30. And then it's like 5 hours, 6 hours, 8 hours, whatever, depending upon the event I'm training for. I try to cover. And there are days when you haven't had proper sleep, you had acidity because of odd hours eating and all of that. So I kind of, so that's a mindset, you have to develop that. Doesn't matter what is the weather, doesn't matter. I'm Yes. sorry. Okay, yeah. Doesn't matter the weather, the terrain, or the, once you've decided, okay, today I have to run for 8 hours, no matter what the day, not every time you'll have the right pace that you have in your mind, but you have to just start. So I'll tell you, for instance, when I was like, I wanted to start my run at 6:30 in National Park, but Okay. because I had like vomiting in the morning, I was puking, I had acidity, I had stomach upset.
So by the time I could actually start was 8:30 in the morning, and I had to do like 50K in that day on National Park. So I started 8:30 and I finished at like 3:30 something, but I made sure that I have to do it. So I think it's all about mindset. Doesn't matter what's going on in your life. If you have, I've decided today these are my 10 priorities, which also includes your ghar ka priorities. You have to follow that discipline. That's the only key. If you have to, and you also have to listen to your body. Your body needs sleep. नहीं हुआ है 100 kilometers you're trying for that week नहीं हुआ है it's okay. It is fine. You can go under train, but your body needs proper rest to recover and get the gains out of whatever training you've done. So in nutshell, it's balancing out. Oh, lovely. Okay. But it's sometimes like, I don't know. I mean, you have to have some specific goal or something like that. You work towards a goal. At times, like what happens is like, you feel lazy and stuff like that. So the most important thing is what you mean to say is consistency is the key, sort of like, yeah. That's Yeah. what it is, guys. I mean, champions versus other runners. Like that is what it is. I mean, she's upcoming now, but still, like there is a lot to learn. And you can't be like, podium finish and doing well just like that, not getting up in the morning, not doing mileage and all that. It's not possible. There is a lot of hard work behind it, and a lot of sacrifice also behind that. The thing that nobody see that, that's very, very important. And now, Aarti, like definitely I'll be calling you for our comrades when the training starts. I have Zoom sessions. Surely, like you, I will definitely invite you for the some of the Zoom sessions there. And now this time, like it's specific to border. People are doing 50 and doing 100 as well as 160 also. So I just wanted to know, like, you never ran 100 kilometers, but you first attempts itself, you ran 100 miler, right? And do you advise this to other runners, beginners? First question. And other one is that how did you train, prepare physically and mentally for the border 100 miler? Because it coming at 12 o'clock and hardly any time. And when did you do the mileage and how you developed this? Like, it was like physical and mental, this thing, how preparation, how did you manage? If you can just, So I first of all, had like, done first of all, your first this thing is like you straight away 100 miler you did instead of 100. So do you advise this to the beginners or it it depends on depends the like person, depends on the runner too? depends. It depends. It's not like really beginner. So I wasn't really a beginner because I had done 90 kilometers comrades earlier, right? So I knew like if I try to do 100, it'll be easier, right? Like I know I'll be able to finish. That confidence I had because I'd done 90 already, right? So it's just 10 kilometers. Of course, the terrain, the weather, and everything is Yeah. different. Yeah. But I had this feeling because I've done 90 and I had done a decent time considering I had just started at the time. And from then, my fitness to 2023 just improved. So I knew I can do it. But I wanted to attempt the 100 mile because I wanted to see what happens. And I was like mentally, I'm always prepared. Like even if things go wrong and my body is not supporting, I'm ready to quit. I have no shame in saying that I could not do it. I could not do it. It's absolutely okay. I don't come under any peer pressure or anything that what will people say. It's okay. Let them say it's my body, You my just money, wanted to my try it experience. out, like, Yeah. just So run the 100 yes. miler and see what it is. Exactly. So I have always been like that, that if I want to try something, I want to try something. It's more like trying something. So right from my 5K, when I tried 5K, it was also like, अच्छा देखते हैं क्या होता है 5 किलोमीटर में, right? और हर बार there is someone to tell you, there are more than someone, there are many people to tell you like ये नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा. Even when I was running my 5K, I remember my boss told me like, पुलिस की भर्ती में 3 किलोमीटर भागने में 2 कांस्टेबल मर गए. So he scared me like that before I ran my first 5K and मैं जिंदा वापस आ गई. तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं मर रही हूँ मैं. So I think that's been the attitude. I wouldn't say like beginners should attempt 100 mile directly. They should see what their physical, like what their endurance has been, what's their past experience, how much they have covered, and what their training been. See, anyone can walk and finish 28 hours are more than enough. If you're mentally strong, you can definitely finish in 28 hours. But how you finish is also very important. Like how I finished in 2023 versus how I finished in 2024, there's a huge difference. In 2023, I was like trying and maybe just finish. Coincidentally, I ended up having a podium. But 2024, the mindset was to run, like chase a certain timing, like to go faster than the previous people's record. So that was like my mindset. So the training was different.
So it is completely on key what your goal is. If you want to just finish and then just go. If you want to finish and not get injured, do a little bit of more training and then go. If you want to chase timing, then do proper training, structured training, and then go. It's completely your goal. Okay. So I just wanted to ask you, fine. So, like, how challenging is to running in the heat during the first half, and how did you manage it? And So at it's 12 tough. o'clock is very hot. And do you need training in the, did you train in the heat? I mean, anyway, you are used to that training in the heat because you used to like come home only late and the late you used to start running. So it really might have helped you. And how challenging it is, like, running in the heat, like any strategy It you is. followed or something like that, or because, Yeah, so it's hot. I'll say it's not very hot, but it is hot because the sun is like very sharp. It's going in your eyes. It can start burning your skin. So what you have to do is you definitely need a cap, a proper cap to cover, give you nice shade. You need shades, sunglasses चाहिए अच्छे वाले, because उससे काफी ठंडक आंखों में लगती है तो आपको उतनी फील नहीं होती है. इफ पॉसिबल वेयर स्लीव, जैसे हम लद्दाख वगैरह में जाते हैं तो वी वेयर स्लीव. लेग्स आर फाइन, अगर आप शॉर्ट्स में भी भाग रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना नहीं फील होता है अनलेस यू हैव सेंसिटिव स्किन. बट यू नीड टू कवर योर हैंड्स सो दैट वो स्किन but का जो बर्निंग in the after 6 o'clock, if you're wearing shorts, it won't feel cold. नो देन यू हैव टू चेंज. सो आई एम कमिंग टू इट. सो आफ्टरनून सेक्शन जो आपके स्टार्टिंग के 12 टू लेट्स से 4:35 इश जो आपका है, उसमें मैक्सिमम आपको गर्मी फील होती है, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू cover yourself, wear cap, wear your wear sunglasses, and you have to drink. You have to make sure you're drinking adequate water and electrolyte. So Okay. you have to carry good amount of water. I carried 100, sorry, 500 ml ka do bottle. One had electrolyte, other one had just water, and I kept alternating based on how my body was feeling. And I've done a lot of training based on my. So I have a Electrolyte lot of. means electrolyte means like mixed with water or strong ones, like very नो नो नो, sensitive. दे वॉट एवर दे हैव ओवर देयर, उनके पास जो होता है अच्छा वही। एनर्जी ड्रिंक, जो भी इलेक्ट्रोल वगैरह होता है, हम्म। उसको मैंने एक 500 ml की बॉटल में रखा था, दूसरी बॉटल में पानी रखा था. और जैसे कि मैंने ट्रेनिंग किया, हमेशा मैं बॉडी, मैं आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई बॉडी. तो मुझे पता चलता है कि मैं कब फास्ट जा रही हूँ, कब स्लो जा रही हूँ. अगर मैं घड़ी नहीं भी देख नाइस। रही हूँ तो मोर लेस मैं ट्रैक पे रहूंगी, बिकॉज इन द ट्रेनिंग आई हैव ट्रेन माई सेल्फ गोइंग बाय द फील्ड. सो फील्ड से मुझे पता चल जाता है कि कितना पेस मेंटेन करना है. तो इवन इफ आई एम नॉट लुकिंग एट द वॉच, मोर लेस आई एम ऑन ट्रैक. सेम थिंग आई डन फॉर माई न्यूट्रिशन. So you have to like constantly understand कि dehydrate हो रहा है, तो you don't have to wait, मतलब keep sipping, like that is the strategy you have to follow for heat. Ah, Yeah. okay. So yeah. So I mean, see that the guys, like these are the small nitty gritty, like small points. Like she said, when she listened to the body and she knows like whenever she's going fast or something like that, she will know like whenever something is wrong, so she will slow down. It's the same thing with me also. Whenever I go, I know like if I have 5:30 pace or something, I'll come to know I'm in 5:30 pace now. I'm a little faster. My breathing and stuff pattern, I'll come to know exactly. Then I slow down or I continue with that same pace for some time and see. This is adjustments you have to do yourself. This comes with the practice, the experience. So now, just coming to the thing, and again in the night it becomes cold, like so for 100 milers runners have to go through the night. Again you face the sun in the morning. If you're a little bit late, then again harsh sun. You know how it is. I don't know, like the night you Yeah. get to So I'll sleep tell you, something, sir. get to sleep, or you Maybe just run. no, I'll tell you. So I'll go by first the cold and the heat part. So Yeah. what I started, I wore a length, well, because I wanted to keep myself away, like protected from the sun. So I started with like a inner layer, which is a base layer, white color to reflect the light. Okay, on that white base layer, I wore a t-shirt, normal t-shirt, running t-shirt, and a shorts. Okay, so after, and then I had a cap and sunglasses. So till 50, 60 kilometers, I ran in that. So anyone who's really running 50 kilometer, they are sorted. They just reach the 50 kilometer mark. They can keep their jacket, like finishing a bag where they have the clothes and the jacket. For people who are running 100, I think they'll have a pit, like the stop bag जहाँ पे रखा होगा at 60 kilometer. So there they can just quickly change into woolen layer. So मेरे पास में डिकैथलॉन से मैंने जो लिया हुआ है वुलन लेयर है.
तो वो मैंने लेग्स में भी, आई रिमूव माई शॉर्ट्स एंड आई वाज वेयरिंग अ बेस लेयर, तो मुझे चेंज करने के लिए जगह नहीं चाहिए था। मैंने उसी के ऊपर एक लेयर ऊपर डाला और एक उस टी शर्ट को निकाल के उसी के ऊपर एक बेस लेयर के ऊपर एक वुलन लेयर डाला, व्हाट फ्लीस टाइम दिस मटेरियल का वाज? जो। शाम को सो इट इज, 60 के इट्स बाद? हाँ, एट 60, एग्जैक्टली एट 60, जहां पे बट मेरे को स्टॉप आप हुआ मेरे को था। जस्ट क्विक द थिंग लाइक समटाइम्स व्हाट हैपेंस लाइक you're in the rhythm you're going and suddenly 60 के आसपास तो ठंडी भी चालू हो जाता है, then you changing like you got to be very quick otherwise वो stiffness भी आ जाता है ना, then otherwise no? हाँ, वो आ जाता है, बट मेंटली आपको पता है कि अभी करना ही है, तो कुछ भी मतलब, सी अच्छा ऑल you ऑफ दोस just थॉट्स यू हैव टू कीप अवे, लाइक यू डोंट हैव टाइम। ऑल uh, यू हैव टू थिंक इज कि मुझे अभी 60 आ गया, मुझे 100 पहुंचना है, मुझे 160 पहुंचना है। ऑल यू आर थिंकिंग इज लाइक that द is your नेक्स्ट स्टेप। mindset you हाँ अच्छा यस, हाँ, नेगेटिव थॉट, सी नेगेटिव थॉट जिस मोमेंट में आया ना, आपका कॉर्टिसोल राइज, तो आप जो नॉर्मली आपका फिजिकली बॉडी गिव अप करेगा उससे ज्यादा गिव अप कर देगा। okay तो नेगेटिव थॉट के लिए ऑप्शन ही नहीं है। आपका बॉडी उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको वो बॉडी कई बार जेन्यून होता है, कई बार वो सिर्फ सिग्नल्स होते हैं जस्ट सो दैट यू स्टॉप, राइट। बट यू हैव टू लाइक, आई थिंक यू हैव टू जस्ट कीप योर माइंड फोकस कि मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है। तो मैंने क्विकली 60 पे चेंज किया। मैंने लेगिंग्स पहना, उसके ऊपर फ्लीस मटेरियल का डेकेथलॉन में मिलता है, अंदर फ्लीस का लेयर होता है, ऊपर नॉर्मल ड्राई फिट होता है। तो मैंने लेग्स में पहना, ऊपर पहना। आई हैड अ कैप एंड आई हैड ग्लव्स, ग्लव्स आर रिक्वायर्ड। तो okay ये मैंने वहां पे पहना, और वहीं पे मैंने अपने एक्स्ट्रा जेल्स रखे थे। सो आई कैरी लाइक 6-7 जेल्स फ्रॉम okay द स्टार्ट पॉइंट। 60 पे मैंने थोड़े से और जेल्स मतलब फिल अप कर लिया, और हेडलैम्प रख लिया, बिकॉज डार्क हो जाता है तो यू नीड हेडलैम्प। तो मैंने एक्स्ट्रा बैटरीज भी रखे थे वहां पे, जो मैंने ले लिए। और उसके बाद मैंने अपने सॉक्स चेंज किए वहां पे, सॉक्स को, शूज को निकाल के क्लीन किया, पैरों को पूरा अच्छे से वेट वाइप से, फिर से शार्पनिंग क्रीम लगाया ताकि नेल्स प्रोटेक्टेड रहे। सो इफ यू सी कंपेयर टू अदर अल्ट्रा रनर्स, यू विल सी माय नेल्स आर मच इन मच बेटर शेप okay बिकॉज आई केयर फॉर देम। सो मैंने वो लगाया, और उसके बाद मैंने सॉक्स चेंज किए, फ्रेश सॉक्स पहना, और शूज नहीं चेंज किया मैंने, शूज वही कंटिन्यू किया। एंड देन मैंने थोड़ा सा खाना खाया वहां पे, दाल राइस है, एंड देन आई मूव्ड ऑन। 100 पे मैंने फिर से ब्रेक लिया, 100 पे अगेन मैंने जेल्स रिफिल किया। हेडलाइट मेरी ज्यादा यूज नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ में कोई ना कोई रनर था, तो उन्हीं का मैंने यूज कर लिया, तो मुझे बैटरीज रखने नहीं पड़े। और उसके बाद मैंने 100 पे एक और जैकेट, डाउन जैकेट, जो अगेन डेकेथलॉन में मिलता है, -5 डिग्री वाला, वो सिर्फ मैंने ले लिया, थोड़ा सा खाना खाया। आई यूज्ड टॉयलेट, वहां पे टॉयलेट नहीं है, बट यू हैव टू गो लाइक द ओपन। सो आई फ्रेशन अप, एंड उसके बाद आई कंटिन्यू। सो लाइक लेयरिंग अगर आप देखेंगे, तो मैंने जो स्टार्टिंग में पहना था वो 60 पे मैंने उसके ऊपर और लेयर डाला, और फिर 100 पे मैंने एक और जैकेट का लेयर डाला। और फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था, तो थोड़ा धूप निकल गया था, खत्म करते करते मुझे 24-25 घंटे लगे थे। तो मैंने 140 पे एक छोटा सा प्लास्टिक बैग कैरी किया था, लाइक नॉर्मल पॉलिथीन। तो अभी मुझे पता नहीं, आई थिंक विश्वास भाई से पूछना पड़ेगा, व्हेन ही डज द ब्रीफिंग, he allowed everyone to layer off at 140, so there is no tent or anything. You can just remove your jacket in open and put it in that bag and give it to him. Give it not to him, like the volunteers over there. yes yeah सो मैंने लेयर ऑफ करके वो थैली में डाल के उनको जो वॉलंटियर्स है वहां पे 140 पे दे दिया था, उन्होंने सबको अलाउ किया था। सो फिर मेरे जो अंदर की जो नॉर्मल बेस लेयर था, दैट हेल्प मी, क्योंकि वहां पे फिर मुझे फर्दर चेंज करने के ऑप्शन नहीं है। सो आई कैरिड वन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। 100 के पे जब मैंने जैकेट उठाया था, तब मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट भी उठाया था। तो वो okay मैंने 140 पे वो ऊपर का लेयर डाल दिया, और उसके ऊपर बेस लेयर पे वो शॉर्ट टी शर्ट ओपन में ही, बिकॉज लाइक ऐसे बेस लेयर हेल्प्स मी। तो वो मैंने चेंज करके देन आई कंटिन्यू द रिमेनिंग 20 किलोमीटर। पर वो 20 किलोमीटर में धूप में, मतलब अगर आप थोड़े स्लो जा रहे हो और धूप निकल आई है, तो वो लेयर ऑफ करना इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो जान निकल जाएगी। तो आपका जो 500 आई मीन हाफ लीटर का दो बॉटल्स था, दैट इज गुड हाँ, इनफ फॉर 10 किलोमीटर्स तक के आपको? सो इट डिपेंड्स ऑन द स्वेट रेट। जैसे मुझे काफी हो जा रहा था, और कई बार बच भी जा रहा था, क्योंकि जैसे मैं 10 के पे, हर 10 के पे सपोर्ट है, तो मैं 10 के पे जाती अपने दोनों बॉटल को पकड़ा देती थी कि आप पानी भर दो, आप इसमें ये भर दो। और जब तक भरते थे, तब मैं जो मुझे खाना पीना है, जो खाने की चीजें, वो मैं बैग में ठूस लेती थी, फटाफट खाती नहीं थी, बिकॉज खाने में टाइम जाता है। ओके तो वो जस्ट स्टफ इट इन माई बैग। मेरे बैग में ना, हाइड्रेशन बैग में आगे पॉकेट्स है काफी सारी, वो भी अगेन डिकैथलॉन से लिया हुआ है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव थिंग। ओके और मैं जो मुझे पीना है वो मैं पी लेती थी। जैसे अगर आपने टंकी पे अच्छे से पी लिया है, आपको जो भी पीना है, तो मैं फटाफट पी लेती थी, और उनसे बॉटल भर के वो डाल देती थी। फिर जब मैं वॉक करना इंस्टेंट, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हाइड्रेशन पॉइंट पे जरा टाइम खराब ना हो, तो मैं ओके फटाफट वहां से निकल जाती हूँ। फिर वो जो मैंने खाना था, वो मैं उसमें, उस टाइम में जब मैं चल रही हूँ तो मैं खाती हूँ, तो मेरा अच्छा टाइम बचता है। वेरी नाइस
तो मैं वो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टॉप पे मुझे क्या खाना है या क्या उठाना है वहां से, सो दैट यू डोंट गो एंड डिसाइड कि अच्छा मैं एप्पल खाऊं या मैं ये खाऊं। वो नहीं, आपको पहले से ही सेट रहना है कि मुझे क्या खाना है। बराबर है। So, some of your my other questions also you answered, like, what race tactics help you before and after sunset. I think some of them you already, like, you answered. Like before sunset and after sunset, क्या tactics आपने follow किया था? Like, सनसेट के पहले तो कोई चैलेंज ही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा। अच्छे से ब्राइट डे लाइट में भागना आसान होता है। गर्मी होती है बट इजी होता है रन करना, क्योंकि प्रॉपर दिखता है। लेकिन नाइट में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली वो रात में। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट मैंने सुना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि एक साल फुल मून होता है जब बहुत रोशनी होती है रात में, और उसके नेक्स्ट ईयर जब इनका इवेंट होता है उस वक्त न्यू मून होता है, यानी कि देयर इज नो मून, अमावस्या की रात होती है, तो लाइट नहीं होती, बहुत पिच डार्क होता है। तो मैंने वो दोनों एक्सपीरियंस कर लिए वन बैक टू बैक। 2023 में एकदम डार्क था और 2024 में लाइट, अच्छा लाइट था, तो वो हेडलैम्प इतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी। हम्म। बट अभी इस साल मुझे नहीं पता कैसा है। तो यस, ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है। तो अगर कोई बोलेगा कि मैं दिल्ली से हूँ, जयपुर से हूँ, या बस, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर आपको उस वक्त ठंडी नहीं लग रही है तो अपने बैग में कैरी कर लो, 100 200 500 ग्राम वजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आगे जाके आप फंस गए, यू हैव नो वे टू गो बैक, तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि आपको ठंडी की आदत भी है तो जस्ट कैरी एक्स्ट्रा लेयर्स, यू कैन ऑलवेज रन विद दिस एक्स्ट्रा वेट। रात में पानी उतना नहीं लगेगा तो आपको पानी का वेट कम हो जाएगा, वो आधी आधी बॉटल से भी हो जाएगा। बट ठंडी के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, डे में तो आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, जो मैं बोल रही थी पानी का डे के हम्म। लिए, हम्म। अगर आप सॉफ्ट फ्लास्क ले लीजिए, 500 500 ml के आपको डेकाथलॉन में मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है आपका स्वेट रेट ज्यादा, आपको ज्यादा पानी लगता है, तो वो जो खाली सॉफ्ट फ्लास्क है ना, वो एक्स्ट्रा आप कैरी कर लीजिए, पुट इट ओके। इन योर बैग। आई विल नेवर एडवाइज एनीवन रनिंग विद द हाइड्रेशन बैग, जिसमें पीछे जो बैग होता है ना, वो मैं कभी एडवाइज नहीं करूंगी, बिकॉज पानी। अगर आप घर पे भी टाइम लगाएंगे ना उसको निकालने का, और वो पूरा भर के फिर से कुछ पाउच लगाओ, फिर उसको अंदर सेट उल्टा डालो, फिर वो बेल्ट को निकाल के क्लिप करो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत, अगर आप टाइम चेस कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ फिनिश करना, एक्सपीरियंस करना है, तो देन नो प्रॉब्लम। बट ओके। अगर आप टाइम चेस कर रहे हो, लाइक मी, आई चेस चेस टाइम, तो फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला। और जितना आप डिले करेंगे ना, एक्सपोनेंशियल सफर आप उस डे पे तो नहीं, जैसे जैसे रात के बाद, स्पेशली 100 माइल वाले ज्यादा सफर नहीं, क्योंकि पूरा दिन निकल जाएगा ट्रू। और फिर धूप आएगी, और बाद में रोलिंग रोलिंग हिल्स आते हैं, लास्ट के 30 किलोमीटर बहुत चैलेंजिंग रोलिंग हिल्स आते हैं। तो मेंटली बहुत ब्रेकिंग हो जाता है, आपकी एनर्जी लो हो चुकी है, ब्लिस्टर हो चुकी है, तो सैंड घुस चुका होता है कई आई बार कैन किसी शूज में। इमेजिन बिकॉज ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, उसके बाद ना मसल रिलैक्सेंट अगर आपने कोई पेन किलर अगर आपने ली होगी तो वो भी वर्क करना बंद कर देती, बिकॉज आप यू रीच अ स्टेज वेयर बॉडी जस्ट शटिंग डाउन। ट्रू। तो ट्रू। इट्स बेस्ट कि आप हाइड्रेशन पॉइंट्स पे टाइम वेस्ट ना करें। एक्स्ट्रा वो रखने से क्या होगा ना, अगर आपने सॉफ्ट फ्लास्क रखा है तो अगर आपको जरूरत पड़ रही है, लग रहा है कि कहीं पानी कम यू पड़ रहा कैन है, यूज यू इट, कैन यस। फिल इट एंड यू कैन पुट इट। या। बट उससे वेट, खाली में तो वेट नहीं होगा, बट यू विल बी प्रिपेयर्ड कि अगर मुझे और पानी चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज। कौन है वो? हेलो। तो हेलो। या So I just wanted to ask you that do you follow any what do you call that pacing strategy or something like that? दैट Or ऑलवेज हेल्प्स। अगर आपके okay. आपके आपका गोल है, जो भी आपका गोल है कि लेट्स से आप वो आपको एक ट्रेनिंग से एक रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा। आप सिर्फ विक्रम को म्यूट कर सकते हैं, सॉरी। No, no, I can't. I just विक्रम searching विक्रम who's यादव आई थिंक। just mute him. या विक्रम यादव, आई कैन म्यूट आई थिंक बिकॉज यू आर द होस्ट। 1 minute. Huh? सो बेसिकली अगर आपको पता, आपको अपनी ट्रेनिंग रन से आइडिया तो मिल जाएगा कि आप रियलिस्टिकली एक रेंज मिल जाएगा कि मैं इतने घंटे में कर सकती हूँ। तो Uh, आपको उसी के हिसाब से अपने रेस को डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि मैं ये पेस अच्छे से फॉलो कर सकती हूँ, ठीक है, तो जिसमें मेरा हार्ट रेट एक नॉर्मल जोन में रहेगा। ओके, सो मुझे पता था कि मैं लेट्स से 50 किलोमीटर्स 5:30 to 6 आवर्स में कर सकती हूँ। तो मैंने अपना पेस उस हिसाब से डिसाइड किया था कि फर्स्ट 55.5 आवर टू 6, और अगर वर्स्ट केस अगर डे अच्छा नहीं जा रहा है तो मे बी 6.5 आवर्स। तो मैंने को रेंज अपनी रखा था। अगेन वो मैंने 100K के लिए अपना रेंज रखा था कि मैं 12 आवर्स में कर सकती हूँ। 12 to 13, मैक्स 30, मतलब वर्स्ट केस 30, बट और बेस्ट केस 11 11.5। तो वो एक रेंज मैंने अपनी रखी थी। तो मैं ट्रैक करती रहती हूँ कि मेरा अब तक कितना गया है। हर हर 10 पास होने पे एक आइडिया आपको आ जाता है कि, तो यू हैव टू स्टे इन द रेंज, नेवर फील कि कोई आपको क्रॉस करके जा रहा है तो वो 5:30 की पेस पे जा रहा है तो नहीं। अगर मेरा रेंज 6 6 6:30 का है पेस का,
तो मैं 6 साढ़े 6 में ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, बिकॉज रेस बहुत लंबी है। तो मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंपटीशन, आई वांट टू प्रिजर्व माई सेल्फ। और फर्स्ट 50K में आपने जितने अपने आप को प्रिजर्व किया है, एनर्जीज को प्रिजर्व किया है, आपने अच्छे से खाया है पिया है हाइड्रेशन लिया है, तो वो आपको उतना ही हेल्प करेगा आगे की 50 और उसके आगे की 60 में। You don't follow एंड any मेरा, zone three zones or heart आई rate or गो बाय द फील, आई गो बाय द फील go सर, by मुझे the पता feel. चल जाता है। हाँ, आई गो बाय द फील जिसमें, और फील को भी अगर मैं अगर पेस देखूंगी भी तो वही मेरा 6 6:30, कभी कभी 6:45, अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं टायर्ड हो गई हूँ वॉक वॉक करना पड़ा है तो, बट उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बिकॉज दैट्स इवन पेस आई प्रैक्टिस एंड आई नो दिस इज आई कैन कंफर्टेबली पुल ऑफ। When you run in the pace, like you maintain any rhythm to get into that pace, the thing, or how you get that pace going, what the feel like, आई I saw. जस्ट, Okay. वो आई थिंक वो स्टार्टिंग का 400 500 मीटर तो यूफोरिया हाई रहता है, सब भाग हाँ रहे थोड़ा हैं सा तो फास्ट हाँ. थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बट जैसे थोड़ा 400 500 मीटर गया फिर देन आई रियलाइज कि अच्छा फास्ट और स्लो डाउन। एंड अगेन ब्रीदिंग से समझ में आ जाता है, एक हार्ट रेट का मुझे पता है कि ये मेरा रेंज है, इसमें Okay. सही रहता है, तो आई लुक एट दैट। बट अगेन दिस इज ऑल ट्रेनिंग से मुझे पता है कि ये मेरा रेंज है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ। और जस्ट बिकॉज वो मेरा कंफर्टेबल डजेंट मीन कि उस दिन अगर हीट ज्यादा हुई या उसके हिसाब से अगर एडजस्ट करना है तो मैं स्लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रेस में, ये बहुत लंबी रेस है, अगर Okay. आप में, बहुत लंबी रेस है तो आपको मौके मिलेंगे जब आप, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा नाइट सेक्शन, तब आपको मौका मिलेगा अपना एडजस्ट करने का। एंड मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ये सारी रेसेस में जो आपके हाइड्रेशन ब्रेक होते हैं ना, उसमें सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। जैसे मेरा टाइम, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि 60K पे मेरा 25 30 मिनट्स खराब हो गया था चेंज करने में, क्योंकि मेरे शूज निकालने का और डालने का टाइम बहुत, वेरी स्लो, मुझसे वो शूज ठीक से पहने नहीं जाते तो मैं बार बार एडजस्ट करती रहती हूँ उसको। तो मेरा उसमें 25 30 मिनट चला गया था। 100K पे अगेन मुझे टॉयलेट जाना था, बिकॉज पूरे रास्ते मैंने ब्रेक नहीं लिया था, मतलब टॉयलेट ब्रेक नहीं लिया था। तो वहां पे मेरा वही 25 30 मिनट्स चला गया था खाने में और वॉशरूम वगैरह जाने में, आई थिंक शायद ज्यादा ही गया होगा। और उसके बाद वापस थोड़ा सा 1:30 पे मैं सो गई थी। 15 20 मिनट्स ऐसे करके, फोल्ड करके, वहां पे बैठने की जगह नहीं होती है तो आप नीचे ही बैठ के मैंने ऐसे थोड़ा सा स्लीप लिया था 10 15 मिनट्स। तो वैसे करके मेरा थोड़ा टाइम चला गया था। बट या यू कैन स्लीप एज लॉन्ग एज यू नो यू कैन गेट अप, बिकॉज आई हैव माय फ्रेंड्स हु लाइक दे स्लीप एंड देन उनको कोई जगाता नहीं है और उनको लगता है वॉलंटियर्स जगा दे, कोई जगाता नहीं है और वो सोते रह गए 1.5 2 घंटे निकल गए। तो एट योर ओन रिस्क इफ यू आर स्लीपिंग। Okay. So some of my questions you already answered, like what should runners carry with their during the race? You answered already that. And should runners have quick bite or a dinner along the route, or it's better to carry what they need in their bags? What has worked for you both your attempts? I think you आई डिड ईट दाल चावल, बट मुझे वो पसंद नहीं आया, ट्रस्ट मी, मतलब मैं बहुत सॉफ्ट वाले राइस खाती हूँ और वो थोड़े से हार्ड थे आलू वगैरह तो सॉरी विश्वास भाई अगर आप ऑनलाइन हो तो। बट मुझे आपका खाना नहीं पसंद आया, तो दोनों बार मैंने खाना लिया और मैंने रिग्रेट किया। और तो अगली बार जब मैं जाऊंगी, इस साल जाने वाली थी बट आई आई चेंज माई प्लान, सो नेक्स्ट ईयर व्हेन आई गो आई एम गोइंग टू कैरी माय ओन फूड। तो सिंस द रेस स्टार्ट्स एट 12 o'clock एट आफ्टरनून, तो आई कैन कैरी माई फूड। बट इफ यू आर कंफर्टेबल ईटिंग दाल राइस एंड आलू का सब्जी तो खाना तो चाहिए, डेफिनेटली खाना चाहिए, कार्ब्स तो चाहिए। तो अगर आपके पास में कोई ऑप्शन है, अगर आपकी पर्सनल कार, आई थिंक विश्वास में अलाउ करते हैं 60 पे और 100 पे आपका पर्सनल क्रू रखने के लिए, जो is आपको it? खाना वगैरह दे दे, क्योंकि हाँ, क्योंकि कुछ लोग जैसे जैन थे तो वो नहीं खा सकते थे जो खाना सर्व हो रहा था। तो सिर्फ जो वो अगेन आपको ब्रीफिंग में ऑर्गेनाइजर से कंफर्म करना पड़ेगा, बट जहां तक मुझे पता है जहाँ पे सारे रनर्स के लिए हाइड्रेशन सपोर्ट, मतलब क्रू जो सपोर्ट है 60K पे 50K पे और 100K पे, वहां पे अगर आपका कोई बंदा आपके लिए खाना लेके रहता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है, फिर भी अगेन इट्स बेटर टू Yeah, वेरीफाई। definitely we'll double check. हाँ, Yeah. करेक्ट, बट वो रख सकते हैं। तो अगर कोई रह सकता है आपका खाना लेके तो बेस्ट है, आप वो खाना खा लीजिए फटाफट, बेस्ट होगा। नहीं है तो फिर दे हैव मैगी एंड दे हैव दाल राइस, यू कैन ईट दैट। बट डेफिनेटली आई ट्राइड इट 2 टाइम्स, मुझे मजा नहीं आया वो खाने में, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपने जो भी ब्रेड बटर जैम वगैरह पीनट बटर जो भी डाल के अपने बैग में कैरी करूंगी, एंड आई ईट दैट Yeah, that's what I mean. एज माई फ्यूचर Dinesh हेल्थ। Sheda, like I was just asking him the other day, he said, it's better to eat something, don't sit या and just have a quick bite and move. Don't या waste time, much waste time, but this will give a good energy for you, sort of like. एग्जैक्टली,
Yeah. So now it is like, have you? I mean, having completed twice and getting the podium also into it, both the times, what mistakes runners must avoid? Anything is coming to your minds? Most important, a couple of things, not mistakes, but couple of things to keep remember. Like मुझे दोनों रेसेस में पता नहीं था कि खाना कितना चाहिए. ओके. और ये मुझे जब मैंने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रेनिंग मैंने की तो हमारे जो कोच थे उन्होंने बताया कि सो जो आपका बॉडी वेट है, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आपको कार्ब्स पर आवर इनटेक करना है. सो अगर मेरा मेरा बॉडी वेट जैसे आई एम 47, तो मेरा टारगेटेड कार्ब्स जो था पर आवर वो था 45 to 50 ग्राम्स. बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज मुझे पता ही तब चली जब तक मेरा बॉर्डर ऑलरेडी हो गया था. अब मुझे पता है शायद मैं नेक्स्ट टाइम बेटर कर पाऊँ. तो आपको जो है जब आप ट्रेनिंग रन कर रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग रन आप छोटी भी रन कर रहे हैं जैसे 1 आवर का ट्रेनिंग रन है या 2 आवर्स का है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर गट टू हैव दैट मच कार्ब्स एंड देन रन. ओके. तो वो कार्ब्स का जो इंटेक है ना वो स्टार्टिंग से रखना. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 10 के हम सोचते हैं कि यार अभी तो ब्रेकफास्ट करके आया है, कुछ नहीं है. ब्रेकफास्ट आपने 9 o'clock किया होगा, 12 बजे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक तो ऑलरेडी काफी कुछ डाइजेस्ट हो चुका है, राइट. सो हम लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट 10 के में कुछ नहीं खाते हैं, बस निकल जाते हैं जोश में. तो वो नहीं करना. इवन एट द 0 किलोमीटर यू हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग, यू हैव टू ईट. आप बनाना खा लीजिए, आप जो भी आपको खाना है, आप रेस के 5 जेल खा लीजिए. अगर किसी के पास हाइड्रेशन मिक्स है तो आप हाइड्रेशन मिक्स में 40 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं, आप वो हाइड्रेशन मिक्स ले सकते हैं. वट एवर, यू हैव टू स्टार्ट विद गुड कार्ब्स एट द 0 किलोमीटर. ओके. एंड यू हैव टू टारगेट दैट मच ऑफ कार्ब्स. आपके बॉडी वेट के हिसाब से अगर आपका 70 kg वेट है तो 70 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स यू हैव टू टारगेट. ओके. How we know अब 70 क्योंकि grams कैसे मालूम पड़ता है? You have to तो आपको वो measure. देखना है कि आप क्या खाने वाले. जैसे अगर आप जेल ले रहे हैं, आपके जेल पे लिखा रहेगा कितना वो तो है. कार्ब्स है, टू 20 to 25 ग्राम्स कार्ब्स उसमें होता है. For example, sweet potatoes or something हाँ. like. तो So, आपको फिर जैसे एक नॉर्मल मीडियम साइज बनाना में आई गेस 20 to 25 ग्राम्स, और यू हैव टू सी लाइक कितना किसमें है, क्योंकि साइज के हिसाब but से. here you can't take packets like इतने इतना grams का packets बना के, you just पैकेट्स आप carry ले that जाओगे, much. आपका वेट हो जाएगा. जैसे सम वही पीपल है. लाइक माय फ्रेंड्स आर कैरिंग हाइड्रेशन मिक्स. तो हाइड्रेशन मिक्स के आप, आपको पता है कि जैसे टेल विंड है, टेल विंड की एक स्कूप में कितना ग्राम्स कार्ब्स होता है. तो अगर आपने वो पहले से ही जिप लॉक में बना के आपके बैग में रखा है, थोड़ा 50 तक कैरी कर लीजिए, थोड़ा आपने 60 पे रखा है रिफिल कर लीजिए. अगेन अगर आप 100 माइल कर रहे हैं तो फिर सो दैट कैन बी योर स्ट्रेटेजी, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंज्यूम दैट मच कार्ब्स. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि वी आर सिटिंग 1 वीक बिफोर द रेस. तो हमने अपने बॉडी को उतने कार्ब्स का ट्रेनिंग नहीं दिया है, राइट. तो सडनली वो बॉडी उतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट. तो अभी भी जो 4-5 दिन हम 1-2 घंटे का रन करेंगे उसमें वी शुड ट्राई एंड ईट मोर कार्ब्स. बॉइल्ड आलू हो गया. बनानास में ये नहीं बोलूंगी कि आप हर घंटे में 3-4 बनाना खा लो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा. आपको बाद में ऐसे एकदम वॉमिटिंग जैसा फिर वो बनाना जाएगा ही नहीं. लाइक आई ट्राइड इन गो अल्ट्रा, और एक पॉइंट पे वो ऐसे बाहर आ रहा था. सेकंड प्रॉब्लम विद बनाना है इसकी, बनाना में थोड़ा सा फाइबर होता है, तो अगर आपने ज्यादा बनाना खाया तो यू फील लाइक गोइंग टू और सूप. टॉयलेट. हाँ. तो इसलिए बनाना भी, तो यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन जो आपको अपने लिए ट्राई करना है कि बनाना, बॉइल्ड पोटैटोस, हाइड्रेशन मिक्स, थोड़ा बहुत डेट्स. डेट्स का गुड एंड बैड थिंग, डेट्स में क्या होता है कि आप जब खा रहे हो आपको इमीडिएट एनर्जी नहीं मिलता है, बट डेट्स में स्लो 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 एनर्जी बाद में धीरे धीरे मिलता रहता है. तो बीच बीच में आप डेट्स खाइए. डेट्स से इमीडिएट एनर्जी नहीं मिलेगा, डेट्स में कार्ब्स भी कम है. बट एक डेट्स, मतलब ये मुझे अगेन अभी रिसेंटली पता चला, मेजूल डेट्स आता है ऑनलाइन या शॉप में भी मिल जाएगा मेजूल. वो मेजूल डेट में आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स इज लाइक अ बिग डेट. नाम, दिस इज द ब्रांड नेम. अगर आप वो लेंगे तो उसमें अच्छा कार्ब्स होता है, वो भी आप कैरी कर सकते हो. बीच में आपने वो खा लिया. फिर जेल्स, आप 1 आवर में 2 जेल ले लेंगे तो आपको 40-45 ग्राम्स वहीं से मिल जाएगा. तो आपको थोड़ा सा डेफिसिट रहेगा, राइट. जेल्स की वजह से एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बाद में इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो काफी हीट जनरेट करता है बॉडी में. तो अगेन आपको उसके लिए सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि मैं क्या रखूं. तो जैसे अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप पैक छाछ, छाछ को अपने बैग में, जब आप बैग दे रहे हैं बिग कलेक्शन के टाइम पे, तो आप पैकेट छाछ बैग में डाल के छोड़ सकते हैं. तो वो छाछ आपको 60 के पे मिल जाएगा, 100 के पे मिल जाएगा. अगर आप वो छाछ खा रहे हैं, योगर्ट खा रहे हैं, कर्ड वगैरह, ये जो पैकेट आइटम आप रख सकते हैं, इसको आप यूज कर Whatever सकते you हैं. at the same time, whatever you used to in your training only, you should take it. Don't take it या anything. यू शुड टेक इट, बट वही है कि यू कैन स्टिल ट्राई. एंड दही एंड ऑल मोस्टली जिसको सूट करता है उसको सूट करता है, बट हाँ, कर्ड नहीं इज तो लाइक. प्रॉब्लम हो सकता है. That's what I'm saying. Like chas and all that. हाँ. If you're अगेन not आई मीन used लाइक, to it, and yeah, again, I mean, like, you still have like a week to try that out. हाँ, that's what I mean. In training, you must try it. Don't try Yeah, it you in must. the race day, and that's Right. a basic But I'm anyway. just giving examples so that let's Exactly. say Yeah. next True. time you True. True. can
Hmm. If not this time, you can try. But these are the things you have to take care of your carbs intake. You have to अभी जैसे मैंने सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टार्टिंग एम्प्टी स्टमक, लाइक एम्प्टी मतलब विद स्टार्ट पॉइंट पे आपने चालू कर दिया, अगले Ah, 10 yeah, मिनट में that's what कुछ I नहीं just wanted खाया. to ask you. Like, this is 12 o'clock, it will start. In the morning, you have breakfast. In between, you had something, or like आई after the आई एड breakfast? गुड. मैंने मैंने तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया था. नाइन Yeah. थर्टी 10 10 o'clock को. 12 बजे लास्ट टाइम मैंने बनाना खाया था 2023 में. बट 2024 में लेट हो गई थी. हैड सम स्टमक अपसेट बिकॉज ऑफ ईटिंग आउटसाइड. सॉरी. उसकी वजह से मैं ठीक से नहीं खा पाई थी. मेसडुल रेट्स. सो उसकी वजह से मैं ठीक से खा नहीं पाई थी और मैंने लेट स्टार्ट किया था, तो मैं आई स्टार्टेड एम्प्टी स्टमक. दैट वाज माय मिस्टेक. तो you have to eat something and go. So this is my correction for next time. Taking care of good carbs. दूसरा मैंने क्या किया था, हर घंटे में जैसे मैं 5 किलोमीटर पे पहुंची हूँ, Hmm. 5 15 25, ओके ऐसे 35, उस पे मैंने जेल खाया था. Hmm. ठीक है. 7 17 27 37, उस Hmm. पे मैंने सॉल्ट कैप्स लिए थे स्पेशली डे टाइम में, क्योंकि सॉल्ट लॉस होता है. ये मेरा मेरा स्ट्रेटेजी था. यू हैव Yeah. टू वॉच आउट योर स्वेट रेट एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड. और जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट और मैंने पानी अल्टरनेट किया था, मैंने दोनों अच्छे से पिया था. तो बाय द टाइम आई टू रीच द हाइड्रेशन पॉइंट, मेरे पास 200 ml वाटर तो बच ही जाता था, क्योंकि उतना उतने मेरा हो जाता था. और हर हाइड्रेशन पॉइंट पे मैं अच्छे से पी लेती थी, और साथ में जो मुझे खाना है वो मैं रख लेती थी. सेकेंड मिस्टेक टू अवॉइड इज वो बैग बैग में आपको पीछे नहीं रखना है. Hmm. थर्ड इज टू फील कि यार मैं तो शॉर्ट्स में, मेरे को तो ठंडी की आदत है, मैं शॉर्ट्स में नहीं. वहां जाके कुछ रनर्स को प्रॉब्लम हुई है. इट्स बेस्ट कि आप अपना ख्याल रखें, बैकअप रखें, क्योंकि अगर बाद में प्रॉब्लम हुई तो यू कांट गो बैक. थर्ड थिंग इज टू चेंज योर सॉक्स. मतलब मेक श्योर कि आप 60K पे 100K पे अपने क्या? सॉक्स चेंज कर रहे हैं, और आप जो भी देखो ये शैम्पूइंग कब। वगैरह लगा रहे हैं. Hmm. वरना आपको क्या होगा, होगा प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप सफर करेंगे, कंप्लीट तो कर लेंगे, बट सफरिंग, व्हाई शुड यू सफर? जब आप एंजॉय कर सकते हो इसको, तो सफर क्यों करना है? Keep the सो socks in case you feel like you can wear it. Otherwise, you can, you can, if you don't feel like changing there, but I think it's best to yeah. change, because if you see like the best of those runner like Sorokin and all, they will also advise कि अगर आप सॉक्स चेंज कर लेते हो अपने फीट को क्लीन करके और लगा लेते हो, बट इट 100 के फील्स लिए फ्रेश. चाहिए क्या? 160 के लिए हो सकता है वो. आई डोंट नो, आई नेवर डिड दैट. I आई mean, it's again, इट इज it's हाँ. completely 100. Like lot of people, hundred Pet. k वाले and even 100 mile वाले I've seen, they don't take a break at 60. Okay. उनको जो भी जैकेट वगैरह ठंडी का कैरी करना है, like I know somebody from Delhi, I think Delhi. This guy was running with me 60 पे, उसने कोई ब्रेक नहीं लिया. उसने अपना जो भी जैकेट वगैरह था बस वो उठाया वहां से, अपने बैग में डाला और वो निकल गया. उसने कोई खाना पीना वहां पे नहीं किया. वट एवर ही वॉन्टेड टू कैरी ईट ही कैरिड विथ हिम. सो 60 पे जीरो ब्रेक. ना इट वॉज हिज स्ट्रेटेजी. यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. Yeah, exactly. Yeah. So So this is now, something I'm going to try next time when I go. Maybe I'll not take a break at 60 to save time. okay. I will be answering all your questions, guys. I'll just read out all your questions also. This is the last one now from me, from my side. What's the key advice for runners attempting the border 100 miles for the first timers, in fact, any important advice you said, नहीं यार ये तो करना ही पड़ेगा तुमको, करना ही चाहिए आप, you got to be really careful about this first time, like, when you did your first time, that time हाँ. you thought like, हाँ यार मेरे को करना चाहिए था, बाद में मालूम हो गया आपको, कोई बोला नहीं था आपको, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग यू दिस थिंग रिमेंबर? थिंक मैंने देखा वहां पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गो टू फास्ट. अच्छा जी. बहुत जो जो फास्ट जा रहे थे बहुत लोग ना, हाँ. ज्यादातर डीएनएफ वो हुए थे जो सारे फास्ट रनर्स थे. टू बी ऑनेस्ट, हम अच्छा. स्लो वाले, हमें अपनी औकात पता है, तो हम अपनी औकात के हिसाब से जाते हैं. ओके. तो वो बहुत फास्ट जाने के चक्कर में ना आप गड़बड़ कर देते हो. सेकेंड इज की दिल बी लॉट ऑफ पीपल विल बी नेगेटिव. आई टेल यू कहाँ पे मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आया था. 80 किलोमीटर जब मेरा हुआ, आई वॉज गोइंग ओके. पहले तो मैंने गलती ये करती थी कि आई वॉज रनिंग विथ एक, बीच में मेरे साथ में जो कंपनी थी वो छूट गई थी और अंधेरा हो गया था, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं एक रनर के साथ भाग रही थी, पर वो रनर 100K वाला था, तो उसको आई थिंक एक 50 पे या कहीं पे दे हैव टू गो एक्स्ट्रा अलग रूट पे जाके वापस आना होता, 1 किलोमीटर 500 जाके. तो वो मेरा कंपनी छूट गया, तो आई रन विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल एंड दे वर रनिंग वेरी फास्ट. तो मैं उनके साथ में, बिकॉज आई डेंट हैव अ कंपनी, आई टू रन विद देम. वो 10K जो उनके साथ मैंने रन किया 50 to 60, उसमें मेरा पूरा लैक्टेट हिट हो गया एंड आई वाज लाइक डाइंग, बिकॉज आई वाज रनिंग माई पेस. मैं उनके हिसाब से रन कर रही थी. तो ऑलवेज रन योर रेस. नेवर गो विथ, like if you feel comfortable then only go. Never run with anyone just because that's like they are running. अपना रेस पेस पे आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाइए. कोई अगर फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, तो लीव देम
एंड जस्ट गो बाय योर पेस। तो ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे रनर स्लो थे और मुझे लगा कि नहीं भाई ये मुझे स्लो कर रहा है, मैं निकल गई हूँ सॉरी बोल के, क्योंकि फ्रेंड्स है तो भी दे विल अंडरस्टैंड, रेस इज रेस राइट। और अगर फास्ट जा रहा तो मैं इनको बोलूँ कि भाई आप फास्ट जाओ, आई विल रन माई पेस, आई स्लो डाउन, ओके। सो यू गो योर पेस। सेकेंडली, नेगेटिव पीपल लाइक, सो 80K पे बिकॉज मेरा थोड़ा थक तो जाती है, तो वहां पे किसी रनर ने बोला कि यार 80 किलोमीटर हो गए, अभी पूरा कॉम्पिटेटिव डिस्टेंस बाकी है। अभी आप इमेजिन, आपको पता है कॉम्पिटेटिव अपने आप में एक बहुत बड़ी रेस है, और आपके सामने कोई ऐसा बोलेगा कि 80 किलोमीटर नहीं, पूरा कॉम्पिटेटिव डिस्टेंस बाकी, इट मेक्स यू फील लाइक ओ माई गॉड। I know, it's एंड true. दैट इज लाइक फिनिश, आई डोंट वांट टू गो बिकॉज आई एम टायर्ड, माई लेग्स आर हर्टिंग। Yeah. तो वो जो ऐसे लोग होंगे ना, उनके साथ में आपको उनको इग्नोर मारना है, आपको बस एट ए टाइम नेक्स्ट 10 के ही फोकस करना है, ओके। True. और नेक्स्ट 10 के पे, और जब आपको लग रहा है एनर्जी ड्रॉप हुआ है, दो टिप्स दूंगी मैं। जब को लगे ना मेरा हो गया खत्म, I'm done, तब आपको डन नहीं करना, आपको सिर्फ बोलना है कि बस मैं 10K तक वॉक करके जाती हूँ या जाता हूँ, उसके बाद देखूंगा। और आपको इमीडिएटली आपका, क्योंकि आपका एनर्जी डाउन हो गया, क्योंकि आपका कार्ब्स बराबर नहीं गया, इमीडिएटली हैव जेल्स और वट एवर यू हैव, आपके पास बनाना है जो भी है वो खाइए, आप लीजिए। और उसके बाद आप एक 200 मीटर का या 100 मीटर का स्प्रिंट मारिए। अच्छा. Okay. यू वी स्प्रिंट फॉर 100 मीटर्स ना, आपका रेस वापस से सेट हो जाएगा। यू स्प्रिंट फॉर 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, अगर आपका एनर्जी डाउन होगी, चला ही नहीं जा रहा है, जस्ट स्प्रिंट, आई एम टेलिंग यू, बहुत Okay. टफ होगा, लेकिन वो 200 स्प्रिंट विल सेट यू, ओके, एंड देन यू कैन गो, फिर आपका वो सेट हो जाएगा। सेकंड चीज जो मैंने नहीं की लास्ट 2 रेसेस में, जो मैं नेक्स्ट रेस में करने वाले, कैरिंग म्यूजिक। वहां पे इंटरनेट नहीं होता है, तो आप जिसमें फोन में म्यूजिक लोड कर सकते हैं ना, या Mm. म्यूजिक प्लेयर में, वो आप लेके जाइए, जिनको एटलीस्ट म्यूजिक सूट करता है। इट विल कीप यू अवेक, क्योंकि नींद आती है, बहुत भयंकर नींद आती है, नीड समथिंग टू कीप यू अवेक। तो वो एक चीज आप कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी लाइक, लोग 135 पे गिव अप करते हैं, 140 पे गिव अप करते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप मूविंग, Right. just keep moving, don't think of anything, just keep moving, never let that negative thought come to your mind कि अरे मेरा रेस नहीं आ रहा, मेरा टारगेट पेस नहीं हुआ, मेरा टारगेट नहीं हो रहा, या मुझसे नहीं हो रहा, just keep moving। all you have to think is कि another 200, another 200 मीटर, just this hydration point, बस उतना ही फोकस करना है, and you'll be done, Mm. that's True, it। true, very nice. And this is a beautiful race, It's a very different challenge altogether. Even I experienced it, and Vishwas ji, like as you know, like he's unlike any other race directors. He's straightforward on his this thing. This is what you get. This is you get. That's it. This is you don't get. He's very strict on that, Not like unless any other this things, race organizers. So this is a very challenging one and must do race like once in lifetime you must experience this. This is one of the elite, very good races in India. And 100 miler, Dinesh is behind me. Dinesh Sheda, like you must do 100 miler. This time also registered, but I want to Meko. say thank you to Dinesh ji, because first time जब मैं गई थी I was very nervous, and he is the one who guided me कि आपका आप जो बेस लेयर वाला जो आइडिया था, एटलीस्ट जो क्लोथिंग वाला आइडिया था, वो पूरा इनका था कि कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने। मैं स्टोर में जाके उनको वीडियो कॉल करके दिखाया था कि देखो ये वाला लेना है, कि ये वाला लेना Very, है, ये very, वाला very लेना helpful है। indeed. Yes, So true. he's been super helpful. Even for Kardungla, he's one of the experienced person who runs without watch or anything, and he's still like True, amazingly smiling and going. true, 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 true. So I think I have not answered one question. We wonder now. Yeah, I will go one by one, just ask you, like, first is Ankit Mehta. He said, Satish ji, are you in Indore? Yes, I'm in Indore. Tomorrow running a indoor half marathon. That's my this thing. Your Jupiter half marathon. I'm the ambassador. So I'm running that. And please free to add your questions here, Aarti, she said. And that Sandeep Goyal, I have done few half marathons earlier, doing 50 first time. Should I start with run first and walk later or other way? Sandeep Goyal So ji, I have I'll tell you. done. In fact, I was planning to do a video on this, which I've been planning, been procrastinating. I honestly. Okay. You have done whatever training you have done, comfortable. आप उतना डिस्टेंस रन करके जाइए, okay, whatever distance you feel comfortable, you can go half marathon किया तो half marathon is go। उसके बाद where you feel कि अब मेरा हो गया है, then you can look at the walk as an option, walk and run। So what you can do is you can do like, so I say there are three ways to do walk and run। इधर यू कैन डू टाइम वेस्ट, कि मैं 2 मिनट्स रन करूंगा, 1 मिनट वॉक करूंगा, ठीक है, और वट एवर 5 मिनट्स रन करूंगा, वट एवर यू थिंक आर यू एबल टू पुल ऑफ इन दैट सिचुएशन। ऑब्वियसली वॉक टाइम कम रखना एंड रन टाइम ज्यादा रखना, सो दिस इज टाइम बेस्ड। सेकेंड इज काउंटिंग बेस्ड, यू कैन डू लाइक मे बी काउंट टिल 40,
or 50, and you're running for 50 count, and then you do like 10 count पे आप walk कर मतलब 10, so like 1 to 50 you're counting and you're running, and then another 1 to 10 you're counting and you're walking, so and then you continue, so that's counting based. Third is distance based, so maybe you can do like 500 meters run and then maybe 150 walk, or whatever distance. Like some people do 800 and 200. Some people do 1 kilometer and 200. It's completely you're comfortable. You have to try that out. But we keep it structure. ऐसे नहीं कि जब मैं थक गई हूँ तो मैं वॉक कर रही हूँ, नहीं. यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन कि मेरे को इतने पे रन करना ही, फिर ऐसा नहीं कि 10 पे काउंट पे वॉक करना है तो मैं 11 12 15 हो रहा नहीं. यू हैव टू टेल योर माइंड 10 खत्म हो गया, अभी मेरे को भागना ही है, सो यू Yeah. ब्रिंग दैट डिसिप्लिन. बट यू कैन Right. डेफिनेटली वॉक, इतने बड़े रेसेस में वॉक तो करना ही पड़ता है मतलब. Yeah. uh, Ultra may definitely, yeah, you have Yeah, to. it is okay. At But the same discipline time, walk चाहिए. Aarti, yeah, Aarti rightly said, like Sandeep ji, like you can't do anything new on the race day. Strategy आप change मत करो. जो training में आप कर रहे हैं ना वही continue करो. But in future, if you want to, like there's something like energy this thing, like Krebs cycle करके रहता है. Where if you're Arabic pace में आप run करते हो ना, you can run for long. You can keep running. And in between, like you carbohydrates लेके आप करते जा सकते हो आप. When you into anaerobic pace, no, then your graph will come down. Then you get you get to walk and you feel like very tired and stuff like that. So these things you have to train in your training run only. Training में आप एक train करेगा ना तो you can you know your threshold, accordingly you go, accordingly your pace पकड़ के आप जा सकते हो आप. All right, then what type of bib holder comfortable, pin or belt? Belt if I you, go with belt. I yeah, made that belt mistake is in okay. Comrades and I learned from it. Yeah. I think बेल्ट में क्या होगा ना कि आप कभी भी आपको चेंज करना है, बार बार पिन डालने निकालने में टाइम नहीं जाएगा. पिन गिर गया का टेंशन नहीं है, बेल्ट में वो सिक्योर रहता है. आपको चेंज करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से निकाला पिन डाला. आई थिंक आई ऑलवेज गो फॉर बेल्ट. इट्स नो Okay. नो क्वेश्चन, नो चॉइस All ऑल्सो. right, Vivo. Then this is Kapil Nikam. He said, will running with spectacles be challenging or sunglasses are not possible? ये इसके लिए As दिनेश शेड़ा जी sunglasses not बताएंगे. possible. सो आई थिंक हैज सम, आई Who? दिनेश जी अगर आप टाइप करा सके Dinesh ऑप्शन. ji. You have, I think you get some sunglasses where you can put on those clip-ons where it becomes like sunglasses and like the normal glasses. वो दिनेश जी से पूछ के आए, सतीश सर यहाँ पे मैसेज में Otherwise, डाल what he दिए. can do is like headband इन्हें ना ये बैंड रहता है ना उसमें वो स्वेट आता नहीं है उसमें स्पेक्स नहीं में नहीं नहीं, नहीं वो आएगा पूछ सर. रहे हैं कि उनको स्पेक्टिकल से तो सनग्लासेस नहीं पहन सकते, बट पहन सकते हैं. दिनेश जी ऑप्शन पूछ ही रहा, वो अच्छा बाजू में तो that उन्हें डाल दीजिए. yeah. So now on an average, how much time did you spend at 60 kilometers, 100 kilometers pit stop? 25-30 minutes everywhere. Oh, okay. Including all changes and eating and all that stuff. Okay. So Ankur is telling, is it advisable to have muscle relaxant? That is, please don't have this because No, you know what no. happens. Yeah. There will be a problem in the heart. This thing also it doesn't suit for everyone. Yeah. Sometimes you might. I asked some one of my neurologist, my friend, runner friend. He said no, tell them not to take it. There are the heartbeat just ज़्यादा भी हो सकता है. It'll be a problem. Don't take all those things. Like it'll be a problem. All right, and Dr. Milin Shah, name of the dates, that is Menstrual. MD mensual was same, no? MD, Yeah. MED, yeah, same Yeah. like Sandeep said as. Okay. He's the thing, what is it? Benny I Rico. don't know what's That's beanie. I don't know what's that's beanie. the thing, like what do you call that? You have that on a cap, With the like flap. With the flap. not flap, that कपड़े का वो है ना, that's the thing he's was talking about, I think. I don't know. Yeah. But I carry. मैं मुझे नहीं पता बीनी क्या है, but That's on मेरा the जो on the on the scarf sort of like those kind of a this thing. आई हैव ए वंडा ना, वो मैं यूजुअली बहुत सॉफ्ट वाला वंडा ना जो मैं कैरी करती हूँ. वो क्या होता है, जब मुझे बहुत गर्मी होती है तो मैं उसको पानी में भिगो के Uh, नेक के अराउंड रैप कर लेती हूँ, तो इट जस्ट प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम लाइक थोड़ा सा Heat कूलिंग also. इफेक्ट में रहता है. Heat, एंड yeah. या, एंड जहाँ पे अगर आइस मिल जाती है तो यू कैन ऑल्सो पुट इट आइस इन दैट वंडाना एंड जस्ट इट जस्ट प्रोटेक्ट्स, कूलिंग के लिए बेटर रखता है. Yeah. सो So when you, like you get that cap also, when you caps and all that, muffler is cap भी रहता है. ओके, दैट वो ठंडी ठंडी के लिए. ठंडी के इज इट लिए फॉर सब, हाँ. कोल्ड? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, अच्छा, इतना नहीं चाहिए. नहीं हाँ. नहीं, यू You जस्ट know, नीड टू कवर योर हेड. ठंडी होगी लेकिन वो बीनी वो पूरा वाला नहीं चाहिए, गरम इतना भी हो ठंडी. सकता है. You can carry if you want to. I mean, if you're from a cold, like hot place, like where this will be too cold for you, then and then आपके पास बैग है उसमें डाल सकते हैं ना in case Yeah, but I don't think it's required. Normal cap which covers your ears, I think that is good enough. So, Dr. Milinsha is saying excellent guidance. Thank Yes, of you. course. Like, thank you, Aarti. What is to be done within this week, Kapil Nikam?
Sorry, Well, in this week. That's okay, for your what? coaches. I'm not the coach to tell you No, it's anything. like yeah. I mean, see, like this is ultra marathon, so it like a little bit of depends on like if you are But used to that over, yeah, ओवरडू नहीं sharpening. करना चाहिए. आई नो शार्पनिंग का थोड़ा बहुत 400 जो ऐसा स्पीड है सब करता है तो वो करो आप इन केस इफ यू आर यूज टू इट अदरवाइज डोंट टेक इट इजी नाउ इट इज दिस इज द टाइम लाइक मोर इज लेस you know so I mean less is more I mean to say less is more always so don't do anything Yeah. different and lesser is the better always like you already I'll tell done you your what. training you I would say one thing, like a lot of people have seen and I've seen them like doing it. रेस के एक दिन पहले ना वो अपना 2 दिन पहले अपना इंजन टेस्ट करने जाएंगे. वैसे काफी सारे लोग कल जाएंगे 2-3 घंटे. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कितना क्यों करना है. सी क्या यू हैव टू. टेस्ट कर रहे जब लॉट ऑफ पीपल डू दिस इंजन टेस्टिंग कि अच्छा मेरा इंजन ट्रेनिंग टेस्ट सही हुआ है कि नहीं. हाँ अच्छा अच्छा वो शेकआउट रन के नाम पे 15 किलोमीटर रेस के एक दिन ना पहले ना ना भागेंगे. ना इवन आई या डोंट कल थिंक 2-3 घंटे वो सब नहीं करना. इफ यू गो अंडर ट्रेन बट वेल रिकवर्ड यू विल डू बेटर. वेरी ओके ट्रू बट इफ वेरी यू ट्रू ओवर ट्रेन या यू गो फटीग आपको पता नहीं चलता वो फटीग. आई टेल यू सिंपल है. आपको जो फटीग है ना. व्हाई डिड आई कैंसिल माय बॉर्डर दिस टाइम. बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद न्यूयॉर्क किया उसके बाद हार्डली अ मंथ एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर दिस. सो मेरे को डे टू डे एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई कैन गो टू ऑफिस आई कैन डू एवरीथिंग राइट. बट वो फटीक जो होती है ना अंदर अंदर रहती है वो कब पता चलती है जब आपका 10-20-30-50 किलोमीटर होता है धीरे धीरे जाता है 30 किलोमीटर. देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मेरा बॉडी उठ नहीं रहा है. वो उठ नहीं रहा है क्योंकि वो डे टू डे में आपको नहीं पता चला. पर वो जो फटीग आपने एक्स्ट्रा बिल्ड कर ली थी लास्ट लास्ट के वीक में. रादर देन ईटिंग प्रॉपरली स्लीपिंग प्रॉपरली कामिंग योर माइंड यू आर फोकसिंग स्टिल ऑन माइलेज. जो माइलेज करना था वो हो गया. अब हो कुछ गया नहीं. अब बराबर जाके 1-1.5 घंटा नाउ इजी नथिंग वाला नथिंग कर आओ. इवन शेकआउट इवन स्पीडिंग विल नॉट हेल्प. इट्स नॉट अ मैराथन. शार्पनिंग का भी कोई जरूरत नहीं है बिकॉज 50 किलोमीटर 100 माइल आप कोई 4 के पेस पे नहीं भागने वाले वहां पे. हाँ सो आइडिया इज टू रिलैक्स sleep, eat properly, and relax your mind. Breathing करो, relax रहो. Is I think I would say Sharp, that. yeah, sharpening only thing is like it cool जाता है body but if you are used to that then only otherwise don't otherwise Exactly. वो आपको stiffness आ जाएगा. And as Aarti said rightly said अभी जो करने का तो आप हो चुका है सर अभी करेगा तो उल्टा प्रॉब्लम ही हो सकता है. Right. Correct. Then Aarti ma'am are you joining border this time also? No, she's not coming. And running tights or fleece I pants use or run if night run yeah. I use fleece pants because मुझे ठंड ज्यादा लगती है. मैं मुंबई से हूँ बट अगर आप जैसे आपने ट्राई किया किसी कोल्डर जगह में दिल्ली या राजस्थान जैसी जगह पे इफ यू आर यूज टू कोल्ड देन मे बी अ सिंगल टाइट्स वुड बी ओके. बट मैंने फ्लीस यूज किया था. मैं Okay. अपना बता सकती हूँ फ्लीस यूज किया. Bandana. Mahesh is asking bandana. Yes. बंदाना तो मैंने बताया ना. मैंने कैरी किया था. आई ऑलवेज कैरी I mean, बंदाना. it's good. बस वो Yeah. मेरा लकी बंदाना था. आई ऑलवेज कैरी सो. Okay. And Mitresh is asking if you have gel, salt pill, date, banana every hour, is it still required to have electrolyte? आई यूज इट. मतलब अगेन सबका बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होता है. यू हैव टू वॉच आउट Yeah, कि आपका exactly. बॉडी को कितना उस वक्त उस मोमेंट में कितना फील हो रहा है. अगर हीट ज्यादा है लाइक लास्ट ईयर हीट बहुत ज्यादा था. उसके पहले साल हीट इतना नहीं था. लास्ट ईयर बहुत एक्सट्रीम हीट था. तो लोगों को Electrolyte बहुत is always better. Little bit electrolytes and water, as she said, no? या वो इसीलिए लेके यू जाओ एंड आप. यू हैव दोस 2 बॉटल्स टू डिसाइड. अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मतलब यू कैन अवॉइड बट आई थिंक इट्स बेस्ट टू ट्राई इट आउट एंड हैव द ऑप्शन विद यू. ये क्या है? इस जिनके पास बाग बैग नहीं है. नहीं है वो सब सामान. बैग ले लो सर. अच्छा बैग नहीं है तो इन्वेस्ट इन योर सब सेल्फ. सामान कहाँ डालेगा डालेगा ले लो ना सर क्यों बैग बैग ले लो नहीं. सर. I इसका know तो bag. I सोल्यूशन mean, you नहीं है. must. I know water. How you going to carry the? I mean, bag in the sense. एग्जैक्टली पानी के लिए तो हाथ में. आपका जो बैग ये चाहिए ना तो उसमें तो ये रहता है. I mean, to carry things and all that. Then how do you carry your two bottles in hand or in bag? आई मेरे डेकेथलॉन के बैग में फ्रंट पॉकेट्स हैं. मैंने उसमें बॉटल्स डाल दिया था. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर बाई चांस हो तो आपको पता चलेगा कि हाउ आई कैरीड द बॉटल्स. Yeah. Dr. Pri says awesome session, ma'am. Thank you. Thank you, Satish, for making this webinar happen. All right. And yeah, at last it happened. I was I was running around so much, so much of traffic here came into the thing and hotel also like checking in all the stuff. Oh God. Last time, did you get Coke? यस आई सो विश्वास भाई का एक चीज अच्छा है कि जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया वो डेफिनेटली मिलेगा. मिलेगा. जहां जहाँ पे सो आपको आई थिंक एक गाइड बुक मिलेगा जिसमें मेंशन किया हो कहाँ पे कोक है कहाँ पे क्या है. अगर वो जहाँ पे लिखा है वहां पे डेफिनेटली मिलेगा. मुझे मिला था. एक और चीज है कि जैसे अगर आप 100 के कर रहे हैं तो मे बी वो मतलब अगर आपने ट्राई किया है और आपको सूट करता है तो अगेन विद दैट डिस्क्लेमर सम पीपल कीप रेडबुल क्योंकि बहुत नींद आती है. तो जो 100 माइल कर रहे हैं
दे मे कीप रेड बुल इन द 100K का जो बैग है, जहाँ पे 100K का सामान होगा, बट Hmm. अगेन दैट इज अ चॉइस, Now, आई एम नॉट sometimes you get सजेस्टिंग। dehydration also because of that. Too much या सो depends. मतलब वो स्लीप अगर आपको है, एक छोटा सा कैन रखना है तो यू कैन ट्राई दैट। Okay. बाकी को जहाँ बोला वहां मिलेगा। Jagruti is saying like the session was so informative. My husband is doing 100 miler for first time and our what is that AM attempting 100 kilometer for the first time. He's attempting I am 100. All the attempting. best to you Wow, both. all the best. Yeah, lovely. Nothing like couples, both of them running. Huh? या आप आप भी दो शब्द बोलो अजय कुमार अग्रवाल हाँ अजय भाई है, उनको एनकरेज करेंगे, आप बोलो। अच्छा थैंक्स वेरी इंफॉर्मेटिव कपिल बोल रहे थे इजी शॉर्ट रन्स आर ओके ना या शॉर्ट रन्स इज या इजी शॉर्ट थैंक यू आंसर्स। आरती ऑलवेज इंस्पायरिंग अटेम्प्ट दिस टाइम अटेम्प्टिंग 160 अच्छा पायल एंड ऑल द बेस्ट। गुड लक पायल एंड अंकित सिंह मस्ट कैरी आइटम्स थ्रू आउट द रन फॉर 100 माइल लाइक हाँ, कैप मैंने रन पे मैंने किया था। कैप कैप मैंने, बिकॉज धूप तो निकल जाएगी नेक्स्ट टाइम ना, और आपके पास में सनग्लासेस कितने, मतलब यू हैव मल्टीपल पेयर्स, देन यू कैन लीव वन एट 60K। जब शाम होगी और जब 100K आएगा तो वापस एक वहां से उठा लो। मैं उतनी रिच नहीं हूँ, तो मैंने वो अपने साथ ही पूरा टाइम कैरी किया था। मैंने कैप भी अपना कैरी किया था, मैंने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स भी कैरी किया था, जो धूप निकलने के बाद मैं वापस से पहन लूंगी। तो हाँ, ये सारी चीजें मैंने अपने साथ कैरी की थी। थोड़ा वजन मेरे में नहीं है, तो मैंने बैग में रख लिया था वजन। समथिंग व्हाट इज दिस अखिल जैन इज रिक्वेस्टिंग एआई कंपेनियन क्या रे बाबा सॉरी। something anyway. I just like it. So, Dr. Pre saying, ma'am, what to look for and avoid knee injuries? वो तो आपने वन टू वन आप ट्रेनिंग वन टू ट्रेनिंग वन करना वन टू पड़ेगा। वन वन टू वन आप मैसेज कर दीजिए बाद में शी विल टेल यू आयुष from Ayush is saying Ayush is from that Dubai Creek Runners. ओके, Is हाय ice आयुष। available on the course? आई डोंट थिंक सो, नहीं है। No, no. मैंने नहीं देखा, मतलब Ayush मैंने मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, तो मैंने देखा नहीं, आई आपका डोंट नो दुबई ये। क्रिक रनर्स का वो जो मेरे को मालूम है आइस का वो जो आपने जो रखा था फिनिश लाइन में विद द बियर के आई साथ डाउट। वो बियर के साथ वो रखना पड़ेगा आपको और लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू आयुष गुड लक एंड इन केस ब्लिस्टर्स कम अप वेयरिंग शूज विदाउट सॉक्स इज एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं, ना ना ना, इट्स डेडली। ब्लिस्टर्स आएगा तो आप विदाउट टेप सॉक्स इज वगैरह अपने साथ कैरी कीजिए, टू टेप इट। आप छोटा सा जो भी टेप आता है, मेटल टेप, यू कैन कैरी। और आई बिल्कुल भी नहीं, सॉक्स के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। और सॉल्ट कैप्सूल कौन सा ले मैं आई डोंट नो व्हाट एवर यू ट्राइड, आई यूज जो यूनिवेट का जो यूनिवेट आता है, अच्छा बट है आई यूज द अच्छा नॉन कैफीन, बिकॉज मेरे जेल में बहुत कैफीन होता है। तो मैं कैफीन भी मॉनिटर करती हूँ कि कितना कैफीन मैं कंज्यूम कर रही हूँ 24 आवर्स में। या इसलिए मैं नॉन कैफीन सॉल्ट यूज करती हूँ। आपको जो सूट करता है वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है विल शेयर द रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मसल रिलायंस इज ओके टू रेस डे नो नॉट It's what type of no, big not boulder okay. is That's this is something not you, if you have tried and you have talked to your doctor, if you think you yeah have tried it and you've spoken to your doctor, then only I will not recommend any capsule or I know any. it's not recommended and belt as per AA what is that checklist for 60K drop back I am doing 100K चाहे वो बाद में बोल देगा आपको चेकलिस्ट बड़ा ये रहेगा इज पेन किलर ए स्ट्रिक्ट नो नो yeah of course I mean painkiller it is like I don't think so it is very the same risky boss we can't It's advise you like we said, we are not here to advise anyone. I yeah mean, if you've been taking, or if you can speak to your doctor, just ask them. I mean, और we क्रैम्प are आने not पर qualified to आई नो say. क्रैम्प आने पर पहला चीज क्या करे तो कुछ स्लो नहीं, पहला डाउन चीज कुछ नहीं, आप स्लो रुको डाउन खा लो और रुको मत, चलते रहो। मेरा चलते क्रैम्प का रहना मैंने थोड़ा सा देखा है। और सॉल्ट वाटर और सॉल्ट डायरेक्ट सॉल्ट भी ले सकते हैं आप और एंड पानी पी लो समवन सब वाज टेलिंग मी, एक्चुअली दे कैरी वो जो छोटा पिकल का, जो ट्रेन वगैरह में खाने के साथ मिलता है ना, पिकल। हम्म आई थिंक समवन हैज ट्राइड, आई विल नॉट नेम द पर्सन, बट दैट पर्सन इज टू गेट लॉट ऑफ क्रैम्प्स, और उसने वो पिकल क्योंकि जो एक दो। पिकल में सॉल्ट रहता है ज्यादा सॉल्ट रहता है हाँ, तो इसकी वो वजह से पिकल में कैसे सॉल्ट रहता है, प्लस वो एकदम शॉक, खट्टा सा शॉक लगता है ना, तो आई गेस आई एम अज्यूमिंग दैट्स द रीजन, मुझे नहीं पता। बट आई थिंक पिकल हेल्प सम पीपल। फॉर्चुनेटली मुझे कभी क्रैम्प नहीं आते। या लाइक तो ऑल आई थिंक राइट मुझे। स्ट्रेटेजी फॉर 50K यूजेस ऑफ हो गए एनी क्विक मसल रिकवरी एक्सरसाइजेस हो बॉस दैट इज नॉट नाउ कुछ नहीं दैट इज आप। टू लेट नाउ नहीं, आप सो अच्छे से ये रेस के बीच में मसल रिकवरी की, आफ्टर द रेस, और हाउ इज इट? during the race. Muscle recovery, what? You just stretch little bit. Muscle recovery. And if स्ट्रेच you have नहीं a नहीं, एक मिनट। spray आई रहेगा तो सर, spray कर दो. आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हियर विद सर ऑन दिस। Okay, okay. लाइक मेरे साथ प्रॉब्लम है कि फाइव स्ट्रेच अगर रेस के बीच में, तो मुझे डेफिनेटली क्रैम्प आ जाएगा।
सो आई डोंट स्ट्रेच, आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट ऐसे हाथ से हल्का फुल्का खुद से ही खुद को मसाज करके थोड़ा सा, बट आई नेवर स्ट्रेच, क्योंकि स्ट्रेच होने पे मसल्स ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम पे। थोड़ा सा भी अपने ज्यादा प्रेशर से स्ट्रेच कर दिया तो वो तो है, वो तो है, लाइक योर उनको क्या है। शेक योर लेग हाँ, लिटिल बिट, सो स्प्रे कर जस्ट दो, स्प्रे अवॉइड, मे बी मिलेगा। जस्ट, हाँ मे बी, आई डोंट डू एनीथिंग, जस्ट हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके उसको, खड़े खड़े में मैं बैठती भी नहीं हूँ, आई जस्ट रिलीज इट एंड आई मूव ऑन, आई डोंट सिट, आई जस्ट मूव ऑन। ओके, ऑलराइट। ये कुछ बियर भी पड़ रही है तो इधर भी भेज दो, मैंने इतना लंबा सेशन हाँ, लिया। हाँ, हाँ, बियर इज इम्पोर्टेंट, सारे यस, 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 सारे आफ्टर सीक्रेट टिप्स मैंने शेयर कर दिए तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। beer is very important after the race, and 161 beers for me, 100 beers. और I, जिसको all right. कोई सोना So चाह रहा है रेस guys, के बीच में, आप so सो जाओ। yeah. So, guys, thank you very much for joining in. And Aarti, thank you very much for doing this for us and taking your time. And I will थैंक यू सर, definitely थैंक share यू। this recording. And all the very best, guys, for your 100 kilometer or 100 milers if you are doing. And बस good luck. गाइस, Listen to your body. As Aarti rightly said, don't do anything, different this week. Take it easy. Your mileage and everything is done. So doing more will be a problematic, later on. So, सर जस्ट वन art, थिंग, इफ yeah. दिनेश इज देयर, जस्ट कैन यू मेंशन द नेम, द sunglasses, आई think lot of people have that problem. Uh, what is that? Acha, If Dinesh, sunglass he is there. Dinesh is sunglasses there. glasses, हाँ, Dinesh, दिनेश जी है क्या if he भाई? can, he's there. I don't know, you said you have, it's easier, no? I don't know. If he's Rajiv, there, then definitely we'll message. Otherwise, I'll take his the things and I'll post it. I mean, yeah, we'll put it in आपका जो recordings, so this recording will be available on Sas YouTube channel, yeah, and definitely. there we will, I think you'll just mention the name in the comment. Yeah. हाँ, clip on Acha, से, हाँ clip ons भी है। clip-on glasses. Ah, lens card ka clip-on glasses. Right, right, right. All right, Aarti, thank you very much, and wish you all the very best. We are going to miss you this time at border, and I Come know that next you have time done again. done your quota this way. As you said, like when you advise people, definitely you must follow that also. Like so it is like so much of this thing, and we definitely. I mean, this as this thing is like I always say, these marathons or races doesn't run away. Every year it is going to be there. So border is going to be there next year as well. And Last yeah, thing, most important thing, please guys, do enjoy your race. Pain भी हो रहा है ना तो enjoy it. If you enjoy the pain, आप ये सोचो कि आप उन सबसे अलग हो जो घर पे बैठ के सो रहे हो, आप बहुत स्पेशल हो, आप वहां पे हो। इंश्योर दैट यू एंजॉय दैट जर्नी, एंजॉय दैट थिंग। कितना भी पेन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मेक श्योर यू फील, यू लव दैट, क्योंकि स्पाइस खाएंगे तभी मीठे का मजा आएगा ना। सूखा पूरी भी, पानी पूरी तीखा खाने के बाद अच्छा लगता है, तो वो पेन को एंजॉय करिए, तो आपको रेस का मजा आएगा। इफ यू डोंट एंजॉय योर very रेस true. तो वो सिर्फ सफरिंग होगा। Very true. You're special, like running 50 kilometers and even 100 kilometers and 160. Definitely, yeah. I mean, it is out of this thing, like it is too much. 100 kilometers you're running. It's just attempting for 100 kilometers itself is a great thing, So wish you all the very best. And Aarti, thank you so much. Good थैंक यू luck for सर, all थैंक यू your future एवरीवन एंड races. बेस्ट ऑफ लक। Good luck आई for all ट्रैक यू your ऑल future गाइस, races, and definitely we need your help. I'll call you for one of our Zoom meeting for comrades also. We'll have and every before week that for TMM again. TMM. Yeah, I know that. Hopefully, like you will be pacing this Hopefully. time as well, but I'm not pacing this year, and I will be running for myself. And Tata Ultra, I will be there, and I'll have my 6 hours. I mean, unofficial bus, where you can qualify for your Ladakh also. And plus, like I'm going to run the Ladakh this time after comrades. All right. Thank you so much. And we'll definitely inform you. Like, we will be having this kind of a Zoom meetings quite often now. And good luck for tomorrow for your border. And tomorrow, Ahmedabad, guys, good luck. And Good also luck, indoor. guys. Indoor, I'll be there tomorrow. Half marathon, I'll be running. And yeah, thank you so much, Arti. Right? I'll share this recording later. Good night. Thank you. Good night, Good guys. Thank night. you. Bye Good bye. night. I Thank you, think sir. Thank you, Bye Aarti. bye. Thank you. and I think we'll have a group photographs if you're with this thing. If you're okay, some people are already gone. Aarti? All right, no problem. Next time. Thank you, guys.